शंभो हंसो हि जीवो गुरुरेव हंसो ममात्मा पूर्णमादाय पूर्णमेवम् अवशिष्यते। मनोबुद्धिहंकार चित्तानिनाहम् न चक्षुश्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहम् न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप
બેટા બાકી જે કઈ મોટી જે થઈ ગયું नीचे फोटो काढ ભાઈ જેને જ્યારે આવવું ત્યારે આવજો કોઈ વાંધો નહીં. પહેલા દિવસને યાદ કરો. ચિત્તને એકાગ્ર કરો. મારો વારંવારનું એક અસભ્ય વર્તન મારું રહ્યું છે, અસભ્ય વર્તન. હું તમને ઘડી ઘડી કહું છું, વાતું ન કરો, સીધા બેસાડો, સામે જુઓ, આમ તેમ વારંવાર તમને કહું છું. છતાં પણ તમને જેમ ઠીક લાગે એમ તમે કરો છો તો મને કઈ વાંધો નથી. અહીંયા જે મુક્તિ વહેંચાય છે એની કલ્પના તમને નહીં હોય. આ મારી ત્રીજી ભાવ. કોઈને કેવું ન જોઈએ, મારા ઘરવાળાએ કીધું છે કોઈને કહેતા નહીં. પણ પહેલી ભાગવતમાં કૃષ્ણ જન્મના આગલા દિવસે કૃષ્ણ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થયેલો મારો યજમાન પ્રાર્થના એ પૂછી દીધો. રાતના 12 વાગે મારું માથું દુખવા લાગ્યું અને બહુ મને ભગવાનના ભજનના અવાજ સાંભળવા લાગ્યા. બધું ઘણું બધું થયું. મારા દીકરાએ બધું પોઈન્ટ કર્યા, આમ કર્યું તેમ કર્યું. મને શાંતિ જ નથી, એકદમ માથું દુખતું અને સતત ધૂમ સંભળાતી હતી. મેં કીધું કદાચ અમે કાલે બહુ ગાયા છીએ તે એક હશે, સાયકો ઇફેક્ટ હશે. પણ સવારના 6 વાગે એ મનોજ દમણિયા મારી પાસે આવ્યો. રામબાગ માધવબા મને કીધું મહારાજ પપ્પા શાંત થઈ ગયું કરીને. ત્યારે મેં એને કીધું કે આખી રાત મારી પાસે આવીને ધૂમ બોલતો હતો. મારા દીકરાને ગુજરાતી સાચી છે. આખી રાત મંજીરાનો અવાજ અને ધૂમ ચાલુ હતી. બીજું
ભુજમાં સોનેટા પરિવારમાં દેવી ભાગવત જેનો સંકલ્પ હતો એ બેન તો ગુજરી ગયા તો એના વરે કીધું કે મારી ઘરવાળીની ઈચ્છા છે એટલે મારે દેવી ભાગવત કરાવવી છે. હવે હું કેટલા દિવસ એની ઈચ્છા પૂરી કરું એટલે ઘરવાળીનો સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે દેવી ભાગવતનું આયોજન થયું. બરોબર 5મા દિવસે દેવી પ્રાગટ્ય થવાનું હતું. ઘણી બધી કુમારિકાઓ ત્રિશુલ લઈને માનો શણગાર સજીને ઊભી હતી. એ વખતે સાંજના 4-5 વાગે સમાચાર આવ્યા કે શાંતિભાઈ સોનેતા કથા સાંભળતા ગુજરી ગયા. પૂછી લેજો, માત્ર ભૂજના જ છે બધા. અહીંયા પણ ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી હતી કે ભીષ્મ પિતામહ જેમ માણસૈયા પર સૂતા હતા તેવી રીતે આપણી કથાનો એક ભક્ત માણસૈયા પર સૂતો છે. એ જમનાદાસભાઈ સોમૈયા અહીંયા કથા સાંભળીને ગયા હતા અને નીચે કદાચ એમને કંઈક થયું અને બ્રેન સ્ટ્રોક આવ્યો. ગઈકાલે સાંજે એમનો આ હંસલો ઉડી ગયો. હંસ ઉડી ગયો. ભગવાને એની મુક્તિ માટેનું આયોજન કરી રાખ્યું છે. ક્યાં કલકત્તામાં રહે, ક્યાં રાજકોટમાં જાય અને કથાનું આયોજન થાય અને અહીંયા આવે અને અહીંયા આવીને શ્રી ક્ષેત્ર પંચવટીમાં જેના પ્રાણ ગયા એ જીવ કેટલો સદભાગી હશે. હું તમને યાદ અપાવવા માંગુ છું કે પહેલા દિવસે તમે જે લોકો આવ્યા હતા એમને પહેલા દિવસનો ભાગવતજીના મહાત્મ્યનો પ્રસંગ યાદ હોય તો યાદ કરી દેજો. યાદ કરવું બહુ મહત્વની વાત છે. ચિંતન મનન આ બધું બહુ મહત્વની વાત છે. ગઈકાલે આપણે અન્નકૂટ કર્યો અને ગોવર્ધનજીને આપણે પેટ ભરીને પ્રસાદ જમાડ્યો અને ભાગવતમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે ગોવર્ધનજી મહારાજ પર્વતરાજ એમણે એ પ્રસાદ આરોગ્યો છે. તૃપ્ત થયા છે. પછી જતીપુરામાં હમણાંની વાત છે, બહુ જૂની વાત નથી, 550-600 વર્ષ થયા છે. જતીપુરામાં એક નવો ગોવાળીઓ આવી ગયો. બધાની ગાયોને લઈ જતો ને બધાને કામ કરતો. બહાર નો હતો, ક્યાંથી હાલે આવ્યો હતો. बता है कहता अरे मदन क्या है, कुछ नहीं है, आज ये गया वहाँ गई है, ये गया गया कोई इसको अब इसको बछड़ा आने वाला है, ये इस तरह करती है, ये इस तरह करती है, काम करने बता काम करे गायों चरावे એનું નામ હતું મદન. બધાની ગાયો લઈ જાય ચરાવે અને ગિરિરાજની પર્વતની ઉપર લઈ જાય. एक दिवस कीधु सुनो सुनो मैंने एक कौतुक देखा है. क्या देखा है कि तुम्हारी ये कपिला गाय है ना, उसके आंचल में से अपने आप दूध निकल रहा है और गिरिराज पर्वत के ऊपर ये दूध एक ही जगह पर छोड़ देती है. ऐसा 2-3 दिन का. चौथे दिन कहा अरे सुनो सुनो, गिरिराज पर्वत पर जहां पर गैया दूध देती थी वहां पर कुछ खलबली हो रही है.
क्या हो रही है पता नहीं, ऐसा ऐसा कुछ हिल रहा है। आ समाचार મળ્યા ચંપારણ્યમાં અવતાર લીધેલા एक महान ભક્તરાજને વલ્લભાચાર્ય, વલ્લભ નામ હતું એનું, આચાર્ય પછી થયા। એમને પૂર્વાભાસ થયો। ચંપારણથી ચાલીને તેઓ જતીપુરામાં આવ્યા। જતીપુરામાં આવીને તપાસ કરી અને गिरिराजनी टोच पर गया तो एमने શું જોયું? આવી રીતે હાથ એક બહાર આવી ગયો હતો। બધા આવ્યા જોવા માટે। આમ હાથ એક બહાર આવી ગયો હતો। બધા ત્યાં કીર્તન કરવા લાગ્યા। રાત પડી, બધા ચાલ્યા ગયા। પરમાચાર્ય ત્યાં બેઠા રહ્યા। रातना अचानक એવું થયું કે મૂર્તિ ધીરે 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 બહાર નીકળી। આખી મૂર્તિ બહાર નીકળી। ઉત્તમ કારીગરે જેમ ખુદ ભગવાનના શિલ્પી મય દાનવે कि भाई ब्रह्मा जी गरी हुई तेरी मूर्ति पॉलिश एकदम बाहर आई। आप कौतुक होता है। वल्लभाचार्य क्या बैठा था, उभा थया, जोवा माटे नजीक गया। एवो ते मूर्तिनी अंदर स्पंदन शुरू थયું। हाथ नीचे આવ્યો અને હાથ પોળા થયા। વલ્લભાચાર્ય વધુ નજીક ગયા। તે મૂર્તિએ વલ્લભાચાર્યને આલિંગન આપ્યું છે। વલ્લભાચાર્ય ધન્ય બની ગયા। એમના શરીરમાં એક રોમાંચ વ્યાપી ગયો। ભગવાને કાંઈક એમની સાથે વાતો કરી, થોડું હર્યા ફર્યા અને પછી ગિરિરાજ પર્વત ઉપર એમણે જે જે કાંઈ ક્રિયાકલાપ કર્યા, બોલ્યા, ગાયા, સરસ મજાનું કાંઈ ગીત ગાયું, શ્લોક બોલ્યા। વલ્લભાચાર્યને કહ્યું કે તારે કાંઈ નથી કરવાનું। तारे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी समक्ष देवोत्सर्ग तीर्थ वेरावळમાં જે ભાગવતજીમાં પોતાનું સમગ્ર ઓજસ રેડી દીધું છે, એ ભાગવતજીનો ઘરે ઘરે જઈને પ્રચાર કરવાનો છે। આટલું કહીને સવારના 4-5 વાગ્યા भगवान पाछा मूर्ति मंत्र बनी गया। वल्लभाचार्य धन्य थी गया। બધા લોકો સવારથી એટલે આવ્યા અને મૂર્તિને જોઈ। અરે ભગવાન आ गए हो का? हाँ, भगवान आ गए। वो तो बोल ही सकता नहीं। कुछ बातें हुई क्या तुम्हारी? वल्लभाचार्य शू बोले, शू कहे, क्या कहा भगवान ने आपको? वल्लभाचार्य जवाब नहीं आपता। फक्त भगवानનું જે દર્શન લાલિત્ય હતું, ભગવાનના દર્શન થયા તે વખતે જે ભાવ વિભોરતા એમના સમગ્ર અસ્તિત્વ ઉપર છવાયેલી હતી, તે ભાવ વિભોરતા હજી કાયમ હતી। આંખો બંધ કરીને તેમણે એ જ કીધું,
ભગવાન આનંદ ઘન છે, આનંદ ઘન. એમની પાસે આનંદ સિવાય કાંઈ નથી. દરેક ક્રિયાકલાપ એમનું એટલું રસાસ્વાદથી ભરપૂર છે કે મધુરતા જીવનભર વિશ્વમાં છવાઈ રહે છે. અને એના ભક્તોને ઝાંખી થશે ત્યારે પણ તેમના જીવનમાં આ મધુરતા કાયમ આવી જશે. તેમના પરિવારમાં આ મધુરતા વ્યાપક બની રહેશે. આ મધુરતા કઈ છે? અદરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. વરદાચાર્યજી આ સ્તોત્ર આંખો બંધ કરીને બોલે છે. તેઓ બોલતા નથી, તેઓ સ્મરણ નથી કરતા, તેઓ ભગવાનની આ ઝાંખીને વાગોળે છે, વાગોળે. વચનો મધુરમ ચરિતો મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતો મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ એનો ઝઘડો પણ મધુર છે, એનું રિસાઈ જેવું પણ મધુર છે, એનું ભાગી જવું પણ મધુર છે, એનું બોલવું મધુર છે, એનું આવવું મધુર છે, એનું નૃત્ય કરવું, સમગ્ર ક્રિયાકલાપ અખિલમ મધુરમ, અખિલમ મધુરમ. આ મધુરતાનો આસ્વાદ કરાવવાળી ભાગવતજીનો પહેલો દિવસ તમને ફરીથી યાદ કરાવું છું કે તમે વાંગોળ્યો કે નહીં. એ વરવાચાર્યજીએ આ સ્વરૂપના દર્શન કર્યા પછી તે સ્વરૂપને વાંગોળ્યું. જુગાર રહે વરવાચાર્યજી, જુગાર રહે. आपने जुगाड़ा कि नहीं? पहला दिन क्या कहा गया था? महाराज हेडो के याद रहे. એટલે મચ્છુ નદીના પાણી પાણા ગમે તેના ભીજાય તો કોરા ને કોરા. આ આપણી ભક્તિની અવદશા છે. ભક્તિ શબ્દ એમાં ભ નામ ભગવાન, ક નામ કર્તવ્ય કર્મ, ઈ નામ શક્તિ સરસ્વતી માતા ઈ, અને ત નામ તત્પરતા. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ મળે અને એના માટે તત્પર થઈને આપણે કર્મ કરીએ ત્યારે ભક્તિ આવે. ભક્તિ છે ને ખાલી ઢીલા ટપકા ગાડામાંથી નથી આવતી, માળા કરવાથી નથી આવતી. ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ હૃદયમાંથી થયો છે અને મહાત્મ્યમાં
સનક સનાતન સનંદન અને સંત માવે ભક્તિ માતાને કહ્યું છે કે હવે તમે વૈષ્ણવના હૃદયમાં જઈને બિરાજમાન થાઓ. બરોબર, આમ સાંભળ્યું હતું ને? વૈષ્ણવના હૃદયમાં ભક્તિ માતા બિરાજમાન છે. પરંતુ ખૂબ વરસાદ પડે અને ગામડાના મકાનમાં નેવા વહેવાના ચાલુ થાય, ધરાધરા પાણી વહેતું થાય, નેવા વહે, પાણી તળાવમાં ભરવા જવું પડે એટલે બહેનો શું કરે, પોતાના ઘરમાં જેટલા બેડા અને વાસણ તપેલા હોય ને નેવા નીચે મૂકી દે, રોડ ગમેલા બધું ત્યાં નીચે મૂકી દે. પાણી એટલે ભરાઈ ગયેલો હોય, ધક્કો ન કરાવે. બધા વાસણ છળછળ ભરાઈ જાય, એક ન ભરવાનું. કેમ? એક ઘડો ન ભરાવાનો કારણ કાં તો તે ફૂટતું હશે, કાં તો તે ઊંધું પડેલું હશે, કાં તો તે ફૂટતું હશે, કાં તો તે ઊંધું હશે. એટલે ન ભરાય. જ્યારે ભક્તિના નેવા વહેવાના ચાલુ થયા પહેલા દિવસે, ત્યારે મહાત્મ્યમાં જે કથાનો એજન્ડા કયો છે તે તમને યાદ ન હોય તો સમજી લેજો, કાં તમે ઊંધા હતો કાં ફૂટલા હતો. કે તમે અહીં તો ગોરબા જ ને, પણ એટલે બન્યા ગોરવું ન સમજતો હોય ને કે આજે ફરીથી તમને કહું છું, કથાનો એજન્ડા, કથાનો મર્મ અને તેનો પરિપાક આજે અંતિમ ક્ષણોમાં સિદ્ધ કરવાનો છે. સિદ્ધ ભૂમિતિ ભણ્યા હોય, જ્યોમેટ્રી ભણ્યા હોય તો પ્રમેય અને કૃત્ય ભણ્યા હતો તમે, એમાં એક સાધ્ય કરવાનું હોય. શું સાધ્ય કરવાનું હોય કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો આટલો થાય છે એમ સાધ્ય કરવાનું હોય. પછી આપણે જુદી જુદી આકૃતિ, જુદી જુદી ગણતરી, જુદા જુદા ખૂણાના માપ કરીને પછી આપણે સિદ્ધ કરીએ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો આટલો થાય, 360. અને પછી નીચે લખીએ ઇતિ સિદ્ધમ. જ્યોમેટ્રી ભણ્યા હતો, હું તો ભણ્યો છું એટલે કહું છું, એમાં લખી ઇતિ સિદ્ધમ. આ ઇતિ સિદ્ધમ ક્યારે આવે? જ્યારે અંતમાં, જ્યારે આમાં કર્મ પૂરું થશે, 7મા દિવસે પરીક્ષિતનો મોહ દૂર થશે, 10 દ્વારના ખુલી જશે, એનો આત્મા ઊર્ધ્વગામી બનીને જ્યારે આ મોક્ષ દ્વાર કપાટ પાટણ પટુ મોક્ષના દરવાજાને નાક મારીને જેમ આગળ ચાલે જાય જીવ, તેમ ઉપર જઈને મુક્ત થઈ જશે. પછીની કથા છેલ્લે આવશે. આ પરીક્ષિતના જીવનમાં સુખદેવજીની સામે ભક્તિ મહારાણી તો ઉત્પન્ન થઈ, જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થયું. સમજી બાપુ વાત ક્યાં કહેના કા? જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થઈ ગયું કે આ જીવ નશ્વર છે, આત્માને જે વખત જવું જ છે, અને કરેલા કર્મ ભોગવવાના તે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એટલું નહીં, એનામાં વૈરાગ્ય પણ ઉત્પન્ન થઈ ગયું. આ જગતમાં કશું જ મારું નથી, કશું જ મારું નથી, શરીર પણ મારું નથી. આ હસ્તિનાપુર રાજ્ય, અમારા દીકરાઓ, અમારી રાણીઓ, બધું જ મારું, કાંઈ પણ મારું નથી. આ ભક્તિ પછી જ્ઞાન જાગૃત થયું, વૈરાગ્ય જાગૃત થયું,
ભક્તિ અને જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનો જે આ ત્રિપરિમાણ એના જીવનમાં ઊભું થયું તેનું તાદર્શ ચિત્ર આજે આપણને સાંજના જોવા મળશે. તો ફરીથી તમને એજન્ડાનું યાદ અપાવવાનું કારણ એ છે કે તમે શા માટે આવ્યા છો તે જાણી લો. આ કથામાં શા માટે આવ્યા છો, પહેલા દિવસનો જે મર્મ હતો તેનો વેદન આજે છેલ્લા દિવસે કરવાનું છે. અને આ જિંદગીમાં, આ પૃથ્વી ઉપર, આ ઘરમાં, આ રાષ્ટ્રમાં, આ પરિવારમાં તમે જન્મ લીધો, આ માતા પિતા ત્યાં એ જન્મ શા માટે લીધો છે તેનું પણ જો જે તમને સમજાય ને તો કથાની સફળતા સમજજો. અને આવી કથાઓ સાંભળતા ભગવાનની અંદર ઓતપ્રોત થઈ ગયા હશો ને તો ભગવાન તમને स्टेज पर डांस से आप कहिए ना. बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते. तो जैन डिस्टर्ब नहीं, आ जाओ पाठक जी, आइए आइए. मैं मुझे सब ज्ञान है, सब ज्ञान तो मुझे पीछे और गोवर्धन के बाद भगवत का आता ही है. पहुंचने के लिए भगवान का स्वरूप देखने के बाद मस्त होकर समाधि लग गई और फिर उन्होंने भगवान का स्वरूप को याद किया. उन्होंने भगवान के स्वरूप को, इन याद को, उन स्मृतियों को जुगाड़ा है. जुगाड़ते जुगाड़ते ये नृत्य, ये गीत, ये स्तोत्र प्रस्तुत हो गया.
भक्त श्री कृष्ण को ही याद करती रहती थी। जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, परिवार में जो काम करती है, गोधन में जो व्यवसाय करती है, इस सभी क्षेत्र में गोपियां निरंतर 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 भगवान का नाम ही लेती रहती थी और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। જેવી રીતે ગોપીઓએ ભગવાનમાં મન લગાડ્યું, તેવી રીતે કોઈએ ભગવાનમાં મન લગાડ્યું નથી. ભાગવતજીના 10મા સ્કંદમાં 44મા અધ્યાયમાં 15મા મંત્રથી કરીને એવા ઘણા મંત્રો છે જેમાં ગોપી ભાવ પ્રગટ થયો છે. यादों ने वहने मगनों पने देखे खन्ना दिल दो क्षमार्जना दो गायन दिजैन मनुरक्त दियो दिगंठ्यो नदी में किसी ने है ध्यान आया उस नदी चोर का भी. नानी मतानी नदी में किसी ने तो ध्यान आया नदी चोर का भी. गद गद हुआ कंठ पुकारती है, गद गद हुआ कंठ पुकारती है गोविंद. उसके पाँव की जो आकृति है जिंदगी भर संभाल के रहूंगी, कभी नहीं मिटाऊंगी. आंगन में कोई नारी गोविंद आए मन के अकेले जान करोगे यही गीत गाई. गोविंद राम
कालजी में मैं गीत गाऊं। तुम आओ मेरे करीब प्यारे, परू में निवाला, परू में निवाला, और आओ प्रभु तुम, यही मेरी भक्ति करो कबूल तुम। गोविंद भगवान के लिए ही करती हूँ, उसी के लिए करती हूँ, उसी के लिए बनाती हूँ, उसी के लिए संजोती हूँ, उसी के लिए तैयार होती हूँ, उसी के लिए खाना पकाती हूँ। सारा कर्म है उसका आस्वाद भले ही मेरा पति लेता हो, मेरा बेटा लेता हो, मेरे सास ससुर लेते हैं, लेकिन वो भोग बन रहा है सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। यही कहते कहते अगर रोटी पकाई और रोटी आपके परिवार दोनों ने खाई तो उनके हृदय में भी एक नाग ब्रह्म उठेगा। कौन सा? गोविंद दामोदर माधवेली इंद्रियों का अधिपति। 16,108 इंद्रिय, 16,108 रानियां कृष्ण की कैसे हुई? कुछ बातें हमें हाईवे से निकलते हुए हमने संकड़ी गली में जाना छोड़ना पड़ा हमें। तो भगवान ने जब नरकासुर का वध किया, उसके महल में 16,100 राजकुमारियां कैद हुई थी।
उनको निकाला, उनको छोड़ा, जाओ अपने मैके। मैके वालों ने उनको कहा अब तो तुम किसी और के यहाँ रह चुकी हो, तुम्हारा प्राण इस घर में नहीं है, वापस आ गई, अब क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण मैं करूंगा, जाओ सभी से कह देना कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा पति है। और द्वारिका जी में 16,108 रानियां सोने के महलों में रहती है। ये 16,108 रानियों की कल्पना पूरी समाधि वार्ता है। हमने वस्त्रहरण लीला के वक्त आपको समझाया था वस्त्रहरण क्या है। कपड़े उतारने की कोई गंदी चेष्टा नहीं है, वो तो शरीर में से आत्मा को निकाल कर अपने आप में प्रविष्ट करवाना, और गोपियों की आत्मा को कृष्ण की आत्मा से जब ब्रह्म संबंध हो गया, पूरा जगत कृष्णमय हो गया, पूरा जगत कृष्णमय हो गया। जहां देखो वहां कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण। 16,108 रानियों की समाधि भाषा की कल्पना है। लेकिन हम आपको बताते हैं, फिर से बताते हैं, कल हमने प्रदक्षिणा के बारे में बताया था, कल या परसों, कि हमारे दिमाग के 2 खोल होते हैं, बायां और दायां। याद है किसी को? हेलो, क्या है? कब बताना? जो आने वाले वो आने वाले हैं, यहाँ के लिए तो आए हैं। मौन में बोलिए, मौन में। क्या कह रहा था? बहुत इंतजार करवाया, बड़ा इंतजार करवाया। मैं जानूंगा आपको नीचे उतर के। कहाँ थे बोलो, कहाँ फिसल गया, कहाँ थका दीजिए, मैं कौन सी सीढ़ी से गिरा हूँ? दिमाग के बारे में बताया था, उसमें से जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों प्राण तंतु निकलते हैं, करोड़रज्जु में जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे आगे पीछे जाते हैं, आगे निकलते हैं, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध आगे आगे से वापस ब्रह्मरंध्र में, जहां से निकले थे वहीं जमा हो गए। ये प्रदक्षिणा है। इस प्रदक्षिणा को हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं। कोई बात नहीं, करो। लेकिन दूसरी बात भी है, अब दिमाग से नीचे हृदय की ओर आइए। हृदय में पता है, सबने चित्र देखा है, लेबोरेटरी में, दवाखाने में सबने देखा है, पढ़ाई में भी आता है। हृदय के भी 2 भाग हैं, उसमें 4 खोल हैं, कर्णक और क्षेपक। याद है किसी को? हाँ, उसके ऊपर 4 नलियां हैं, नाड़ी ऊपर है, 4 नाड़ी है नीचे। एक आर्टिलरी, एक कोरोनरी। ठीक है ना? कोई ऐसा तो करो कि मैं ठीक बोल रहा हूं। हाँ, आर्टिलरी और कोरोनरी। कोरोनरी बेंच होता है, अदालत में कोरोनरी होती है, तो सब छान के न्याय देते हैं। हाँ, तो ये आर्टिलरी में अशुद्ध खून आता है, और कोरोनरी में से विशुद्ध होकर हर जगह पर पहुंचता है। तो ये 4 नाड़ियां हो गई आर्टिलरी, और 4 नाड़ियां हो गई कोरोनरी। कितनी हुई? 8। हाँ, उनमें से
108 महाधमनी, महाशीरा। शीरा यानी हमें दिखाई देती है यहाँ पर ब्लू रंग की, उसमें अशुद्ध लोई है। और हम अगर अपनी टॉर्च को यहाँ रखेंगे तो यहाँ लाल कलर दिखाई देगा, वो सारी रक्त वाहिनियां हैं। वो शुद्ध लोई को ले जाने वाली नाड़ियां हैं, जो है धमनी और शीरा। 150 धमनी, 50 शीरा। कितने हो गए? 108 हो गई। 8 ये कोरोनरी और आर्टिलरी और 100 ये, 50 हो, गिनती तो करो। हाँ, और बाकी पूरे शरीर में जहां आप सुई लगाओगे वहां से खून निकलता है। मटके में सुई लगाओगे तो मटका खाली हो जाएगा। ये बलून में, फुग्गे में सुई लगाओगे तो बलून फट जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में जहां सुई लगती है वहां से खून निकलता है और शरीर खाली नहीं होता है। ये एक 16,000 रक्त वाहिनी पूरे शरीर में घूम रही है, पूरे शरीर में। और इसका अधिपति कौन है? हृदय में बैठा हुआ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैश्च रामे वेद्यो वेदांत वेद विदेवत अहम। ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष नचिकेता के साथ यमराजा का संवाद हुआ था आत्मज्ञान के लिए। कठोपनिषद पढ़ो, कभी करो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, कभी तो पढ़ो। भारत में जन्मे हो, दुर्लभम भारते जन्म, सनातन धर्म की परिवार में आप जन्मे हो। अगर आप कठोपनिषद नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्यों जन्म लिया यहाँ पर? क्यों पैदा हुए यहाँ पर? पैदा होने का कोई मकसद था या नहीं? कैसे पैदा हो गए? निद्रा भय मैं तुरंत महाराज ने कहा था यहाँ पर, सामान्य में तब पशु विकराणम। पशु भी सारी क्रियाएं करते, हम भी सारी क्रियाएं करते। फर्क क्या है हमारे में? कुछ भी नहीं है तो कुछ सोचो, सोच समझ के आगे बढ़ो। ये 16,108 नाड़ियों का, रक्तवाहिनियों का, धमनियों का, कोरोनरी का, आर्टिलरी का अधिपति कौन है? यहाँ पर बैठा हुआ है अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, यहाँ पर हृदय में बैठा हुआ है। सभी के हृदय में मैं अच्छी तरह बैठा हूँ, अच्छी तरह सन्निविष्ट। ये खुद कृष्ण है, यहाँ बैठा है, आत्म तत्व है, वो खुद कृष्ण है। और गीता में कृष्ण ने ही सब कुछ कहा है। और गीता के 15 अध्याय का 15वां मंत्र है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, ये कृष्ण बैठा है। कृष्ण बैठा है यहाँ का अधिपति, 16,108 रानी का पति परमेश्वर अधिपति। पूरा ये रूपक हम समझ नहीं सकेंगे, तो व्यास जी ने इस तरह समझाया है। भगवान की लीला अद्भुत। शादी हो गई रुक्मणी के साथ, राक्षस विवाह हो गया। द्वारका में भगवान ने पूरी सोने की नगरी बढ़ाई है। जितने भी यादव हैं उन सबको सोने के महल दे दिए हैं। लेकिन भगवान का जीवन बहुत कठिन है। उनके जीवन में जितने तूफान आए हैं, जितने भवंडर आए हैं, हमने तो सोचा भी नहीं होगा हमारे जीवन में आएंगे तो मर भी नहीं सकेंगे। पहले तो जन्म ही जेल में हो गया, और जन्मते ही माँ बाप से बिछड़ना पड़ा, और फिर गायों के गोबर में बड़ा होना पड़ा। अबूल ग्वाले, भोली ग्वाला ने उनके साथ पूरी लीला करनी पड़ी। आते ही
पूतना ने मारना चाहा, शक्रासुर ने मारना चाहा, तृणावर्त ने मारना चाहा, बकासुर ने मारना चाहा, अगासुर ने मारना चाहा, वत्सासुर ने मारना चाहा। कितने कितने दानव असुर इनके ऊपर इनकी हत्या करने के लिए आए, लेकिन भगवान की माया हम समझ नहीं सकते हैं। दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया। हमें पता है हमारे ये जो आंखें हैं ना, वो अगोचर विश्व को नहीं देख सकती हैं। कल ही मैंने कहा था आपको, कबूतर कितने दुनिया में गिन लो, कौवे कितने दुनिया में गिन लो, कोयल चिड़िया कितनी है दुनिया में गिन लो, कितने हैं। ये सारे आपके पास आ जाए तो कितने होंगे? हाँ, एक साथ कबूतर बैठते हैं, एक साथ फुर करते उठते हैं तो उसका हवा का धक्का लगता है हमें। ये कबूतर एक भी मरा हुआ हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? एक कौवा मरा हुआ हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? चील यानी समड़ी, गरुड़, गिद्ध इतने सारे हैं जगत में, एक भी मरा हुआ हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? कहाँ जाते हैं उनके मृत शरीर कहाँ जाते हैं? मुझे पता नहीं था, कल मैंने कहा था। ये आज आए हैं जगदीश भाई, उनके साथ मैं चेकिंग करता हूँ, उन्होंने मुझे एसएमएस भेजा था। इनकी तारीफ करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आज भी है मेरे पास सेव किया हुआ, इंग्लिश में उन्होंने भेजा था मुझे, जगदीश भाई रवासिया। मैं तारीफ करने के लिए, लेकिन जो है वो तो गुण तो कहना ही पड़ेगा ना। गुण नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आपको मक्खी बनना है या मधुमक्खी? ये मन हमारा मक्खी जैसा है, उड़ता रहता है, अंगारे कभी नहीं बैठेगा, गंदगी बैठेगा, मिठाई पे बैठेगा, उधर बैठेगा, इधर बैठेगा, हाँ, चालू कक्षा में मोबाइल देखेगा। मन टिकता नहीं कहीं। बहुत खंडर मारो, कितने भी उड़ाने दे दो, मन भूल जाता है, लेकिन वो कभी अंगारे पे नहीं बैठता है। ऐसा हुआ कभी क्या अगरबत्ती जा रहे हो, भूल से मक्खी आ गई, जल के मर गई? कभी नहीं होगा। हमारा मन मक्खी जैसा है, उसको पता है भगवान का नाम जहां चलता होगा, भगवान का सत्संग जहां चलता होगा, भगवान का जाप जहां चलता होगा, वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं भगवान में लिप्त हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भगवत पूजा में एक काम नहीं हो सकता है, कंसंट्रेशन हमारा होता ही नहीं है। क्यों? कि मन को डर है कि मैं अगर यहाँ आऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा मन भगवान में धुल जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने साधना पद्धति बताई। भगवान श्री कृष्ण बचपन बहुत दुख में बीता, कष्ट में बीता, लेकिन असीम शौर्य वाले और जिनके पास अप्रतिम बल है, जो माया के सहारे, माया यानी योग माया, जो उनकी बहन जिसको कंस ने पटक दिया था, विंध्यवासिनी देवी, उनके सहारे यहाँ पर गोकुल वृंदावन में रमण कर रहे हैं। दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया। कुछ बातें भगवत गीता के मंत्र का अनुवर्तन किया हो, कभी पढ़ा हो, कभी उसका
पाठ किया हो तब आपको लगेगा कि ये तो जाना हुआ शब्द है। दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, जिसको लांघना मुश्किल है, जिसको पार करना असंभव है, ये माया, उसका सहारा लेके, राधा जी का सहारा लेके, योग माया का सहारा लेके भगवान ने यहाँ पर लीला की है। गोकुल मथुरा वृंदावन में गोपियों को अपना साधन बनाया, अपना हथियार बनाया, अपने संगिनी बनाया, गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दिया, गोपियों के साथ अद्वैत सिद्धांत स्थापित किया, गोपियों की आत्मा को अपने में समा के उनके साथ ब्रह्म संबंध किया। अब गोपियां कृष्णमय है। समुद्र में हजारों नदियां भागती भागती आती है, कोई यमुना है, कोई रेवा है, कोई कालिंदी है, कोई गंगा है, कोई झेलम है, सतलज है, ब्यास है, हाँ, हजारों नदियां आती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। बाद में कोई नदी ऐसी कहती है, हम मझधार में जब जा रहे हैं तो कोई नदी कहती है कि यहाँ पर आओ, मैं यहाँ हूं, नहीं, सारी समुद्र में, समुद्र के पानी में विलीन हो गई, अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया। नदियां वो नदियां न रही, वो महासागर हो गई। उसी तरह गोपियां भी, शरीर गोपी का था लेकिन आत्मा तदाकार एकाकार भगवान में मिल गया था। ऐसे भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी में निवास करते हैं। उनके घर एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम क्या था पता नहीं, बाद में पता चला। क्यों कि ये बेटा जो जैसे ही पैदा हुआ उसको सम्रासुर नाम का एक राक्षस उठा के ले गया। सोचो, रुक्मणी जी और कृष्ण, उनकी क्या दशा हुई होगी। सम्रासुर नाम का राक्षस उसे उठा के ले गया, भगवान कृष्ण पीछे पड़े तो उसने घबरा के उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। वहां पर एक बहुत बड़ा मछली उसको निकल गई। वो मछली एक राजा के रसोई घर में पहुंच गई। जैसे ही रसोई ने उसको काटा, अंदर से जिंदा बच्चा निकला। रसोई में काम करती हुई एक दासी, उसने उसको देखा, ये मुझे दे दो, मैं उसको पालूंगी। कितनी भयंकर विडंबना। प्रद्युम्न कौन है पता है ना आपको? कौन है बोलो? रामदेव का है वो। हमारी कथा में प्रद्युम्न कहाँ से आए थे? नारद जी कथा में आए थे। हाँ, सभी रानियों को बुलाया, धर्मज्ञ आए, उनके पांव छुओ। बारी बारी सारी रानियां आने लगी, सभी को नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कैसे दिया? अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य, अखंड 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 सौभाग्यवती भव 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 भव। थक गए, बोलते बोलते थक गए। 100-200 हुई ना, तो अभी कितनी बाकी है? अभी तो 16,000 है। ऐसा कर कृष्ण, तू मुझे मेरे पाँव छू ले, मुझे तू प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको मिल जाएंगे। भगवान ने इस ब्रह्मर्षि देवर्षि जो भी है नारद जी, उनके पहुंच हुए
भगवान ने उनको दान्यों गृहस्थाश्रम का आशीर्वाद दिया है और फिर कुछ दिन रुके। कुछ रानियां नारद जी के पास आई। महाराज, आप तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, हमें आप ऐसा वरदान दो कि हर जन्म में हमें यही मिले, जन्मों जन्म यही हमें पति की रूप में मिले। नारद जी का ये ऐसा नहीं हो सकता है। धर्म का सिद्धांत ये है कि जो आप हवन करोगे वो आपको प्राप्त होगा। यज्ञ कुंड में जो हवन करते हैं ना, वो हमें वापस मिलता है। वो हमारा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बचत बैंक, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इन्वेस्टमेंट, वो मिलता है वापस। हवन में स्वाहा किया हुआ कोई भी आहुति जाया नहीं जाती, वो हमें फल के रूप में मिलती है। तो आपको कुछ भी बार बार पाना है तो आप, लक्ष्मी की 3 गति है। एक है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो यज्ञ कराइए, हवन कराइए। ऐसे बड़े बड़े भागवत के प्रसंग में आप अपना पैसे का प्रवाह बहाइए। हाँ, ऐसे करने से लोग कहेंगे क्या व्यर्थ सब पैसा जाया करते हो। उन्हें पता नहीं है कि जन्म जन्मांतर के बाद भी यही लक्ष्मी उनके पास वापस आती है, यही सुख हमारे पास वापस आता है। हम इतने सुखी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, गाड़ी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, और वो हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ जो है क्रियमान कर्म आज प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आया है, तब हमें मिल रहा है। कर्म का सिद्धांत है ये। तो आपको कुछ चाहिए तो उसका दान कर दो, नारद जी ने कहा। यानी ये कृष्ण है ना, उसको दान कर दो किसी अच्छे ब्राह्मण को, तो फिर आपको जन्म जन्मांतर में यही मिलता रहेगा। हमारा अच्छे ब्राह्मण तो आप ही है, हमारे सामने आप ही ले लो। अच्छा लाओ, तुलसी का पत्ता दिया, शंकर को किया, जलदान, और फिर प्रतिग्रहामी करके भगवान ने कृष्ण को दान में ग्रहण कर लिया। सारी पटरानियां सारी खुश हो गई। बाद में जाने का वक्त हुआ, तब नारद जी ने भगवान को कहा चलो मेरे साथ। कहा मेरे साथ चलो, कुछ बोलना नहीं। क्यों? मैंने आपको दान में पा लिया है, ये आपकी सारी पत्नियां है ना, उन्होंने आपको मुझे दान दे दिया है। क्या बात है? हाँ, उनकी यही इच्छा है कि आप हर जन्म में आप उनको मिले। तो दान है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे घर में मांगने वाला आता है ना, वो मांगता नहीं है कुछ दे दो ना, ऐसा नहीं कहता है। वो हमें बोध देता है, बोध उपदेश देता है। बोधम व्यंते न यातन्ते भिक्षा द्वारा ग्रहे ग्रहे। हर घर में जाकर ऐसा कहता है और कुछ कहता है। क्या कहता है? दियताम नित्यम अदेयस्य फलम नित्यम। देते रहो, हमेशा देते रहो, कुछ न कुछ देते रहो। हमने नहीं दिया ना, इसलिए आज हम तुम्हारे दरवाजे इस तरह खड़े हैं। दियताम नित्यम अदेयस्य फलम ईदृशम। तो हमने आपको दान में पा लिया है, चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा ठीक है चलो, कर्म का सिद्धांत है, वो तो मुझे भी अपनाना पड़ेगा। मैं कहाँ बाहर जाता हूँ, उससे बाहर नहीं हूँ। भगवान चले गए नारद जी के साथ। थोड़े आगे गए, नारद जी के पाँव में कुछ जो पादुका पहनी थी ना, वो कुछ ऐसी लगने लगी। तो कहा यार ये पादुका बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, पॉलिश नहीं किए बराबर, ये खड़ा हुआ वजनदार है, मुझसे पहना नहीं जाता है। उठा इसको। तो कृष्ण भगवान ने वो पादुकाएं उठा दी। अगर हम किसी के नौकर हो और हमें कोई हमें दे दे अपनी की मेरी मोदी उठाने, तो हम क्या करेंगे?
उसको उठाएंगे ना अखबार में लपेट देंगे और फिर इधर डाल देंगे। और उस वक्त अखबार तो थे नहीं, कोई खराब कोई छपता ही नहीं था, किसी की निंदा छपती नहीं थी। हाँ? वर्तमान क्या है वो किस सबको पता था, वर्तमान पत्र निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब रखना कहाँ ये खड़ा होकर ना रखनी भगवान की, नारद जी की। ब्राह्मण है, महर्षि है, देवर्षि है, भगवान ब्रह्मा के मानव पुत्र हैं, उनकी पादुका भगवान ने उठाई और अपने सर पे रख ली। सर पे रख के चलते हैं। मेरा जो भक्त है वो मैं उसको अपने सिर पे धारण करता हूँ। दुश्मनों को तो मैं खलास कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त के साथ कोई दुश्मनी कर दे तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमरीश की कथा हमने सुनी है। जैसे ही दुर्वासा की कृत्या अमरीश को मारने गई, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया और फिर दुर्वासा भागते भागते वापस अमरीश के पास आके गिड़गिड़ाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान ने भक्त के जो हरदम नारायण 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 बोलते हैं, वो आज समय बहुत कम है, हमें मंदिर तक जाना है, तो भगवान वापस आए। भगवान चले गए, फिर गोपियां आई, भगवान की अष्टभटरानी आई। अरे आप हमारे पतिदेव को ले जा रहे हैं, हमने ऐसा कहा था ले जाएंगे आप। अरे आपने तो दे दिया दान में, फिर मैं कहीं भी ले जाऊं। नहीं, हमें वापस दे दो। वापस देना है तो शर्त है क्या, इनके वजन के बराबर सोना दे दो हमें। अच्छा करो, सोने की क्या कमी है, पूरा द्वारका ही सोना का है, सोने का बना हुआ है। महल में आए, तराजू रख दिए गए, भगवान एक तरफ खड़े हो गए और रुक्मिणी ने अपना गहने उतार के डाले, सत्य भगवान डाले। जब पूरे सबका खजाना खाली हो गया, भगवान का पल्लू पगड़ा है जो ऊपर उठता ही नहीं है। अचानक रुक्मिणी को याद आया, जो बात बोडाना में हुई थी लाखों में, वही बात यहाँ पर हो गई। तुलसी का एक पत्ता डाला और जैसे ही डाला, पल्ला ऊपर उठ गया भगवान का। तो तुलसी के बराबर भगवान अपना वजन कर दिया। ऐसे भगवान, उनके घर अपना बेटा प्रद्युम्न आ गया है।